So good evening students. Today we are going to discuss the week 5 assignment. And week 5 assignment is very interesting. Most important, let me tell you. Okay, it's very interesting and you might be thinking that it's very tough. It's not that tough the way you people are thinking, okay? So पहले कुछ theory बात करें. So let's talk about some theory. Let me take one more sheet. Okay? So first we will be discussing about CNF. Conjunctive normal form. Conjunctive normal form. What is that and what it is about? We will discuss about it. A function of the form C1. This is conjunction. C2 conjunction dot 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 Cn. It is of this form, and Ci is of the form di1 or di2 or dot 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 din. Okay, and di can be of the form L or not L. This is literal. This is literal, simple. अब हम क्या करेंगे, इसका CNF का थ्रू से ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, F का वैल्यू ये है. अब C1 C2 डॉट डॉट दीज आर द क्लॉजेज, और CI को फिर मैं डिवाइड किया, क्या किया, DI और DI2 इस फॉर्म में होना चाहिए, CI. ओके, और DI लिटरल कैन बी L और नॉट L, इट कैन बी एनीथिंग. इट्स लाइक दिस. होप इतना क्लियर है. अब एक क्वेश्चन में चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, से द फॉर्म दैट आर इन CNF. A and B and C, A and B and C, A and B and C. This is this form. Okay, A and B. Means these are the clauses. C1, C2, C3 are the clauses. Are clauses. Okay. So what we can see, what we can say about this A and B and C. A and B and C. This is in CNF because it is in the form, it is in CNF. Okay, and we consider A, B, C as three clauses. Okay, now there is one more, A or B or C. A or B or C. This is also in CNF. We consider A or B or C as one clause. That we can write as one clause. So this is also, this is not A. Not A is a literal. Is also in CNF. It is a literal. We have already discussed this. There can be L or not L. ठीक है, तो it is literal. Now we'll see this. Not A or not B or not C, and not C or not D or not E. This is also in CNF. It's a form. This is the form. Can you see this? This is the form. ये अंदर में, इसके अंदर में, इसके अंदर में भी, इसके अंदर में भी. मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल ले लो. Not P1 or P2 or P3 and Q1 or Q2 or not Q3. इस तरह का फॉर्म तो हो ही सकता है. इस तरह का फॉर्म बाय कंजंक्शन, दे आर रिलेटेड टू ए कंजंक्शन. तो इस फॉर्म इन्होंने बोला है, तो इस फॉर्म बोला. दिस इज ऑल्सो इन CNF. अब क्या है, दिस वन बाहर में नॉट ऑपरेटर है, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, दिस विल बी एंड, दिस विल बी एंड, ये हो जाएगा. तो ये एंड तो हो नहीं सकता, एंड शुड बी इन बिटवीन. तो दिस इज नॉट इन CNF. ओके, अब आप लोग क्लियर हो गए. देन कन्वर्ट दिस इनटू कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. आप लोग सोचोगे, यू पीपल माइट बी थिंकिंग, द मीन्स इतना लंबा कैसे करें. यू माइट बी थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. I'll show you how. See, can you see A of x y यहाँ पे कितने बार है? 2 टाइम्स है. ओके, C of y कितना टाइम है? 2 टाइम्स है.
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सी वाई वन टाइम नॉट ए एक्स ऑल्सो वाई इज़ वन टाइम, ये हो ही नहीं सकता. वी आर नॉट डूइंग एनी रिजोल्यूशन मेथड, बैक चेनिंग या फॉरवर्ड चेनिंग ऐसे कुछ नहीं कर रहे. तो फिर वाई वेयर दिस ए एक्स वाई और सी वाई और दिस ए एक्स वाई और सी वाई हैज़ गॉन, ओनली ए एक्स वाई एंड ओनली वन सी वाई इज ओवर हियर, वेयर आर द अदर वंस. तो दैट मीन्स क्या, दिस आंसर इज रॉन्ग. I would consider this. So, यदि possible, यदि if this question is not wrong, then possibly the answer is wrong. If this okay, this answer is wrong, then possibly this will be the answer. How can you see? This answer is also wrong because dx are here is 2 times, ax is 2 times. That I can say. Cy is also 2 times. I think somewhere. But dx is 2 times. That means the question is wrong. Simple. I have tried a lot, but I couldn't solve it. Means there is something is fishy. It's 2 times axy, 2 times cy is there, so I cannot. It cannot be solved. So leave this thing. Convert this to Scolam form. Okay, Scolam form होता क्या है? We'll discuss this Scolam form. Scolam form. Okay. Please wait for a second. अब स्कोलम फॉर्म क्या है? स्कोलम फॉर्म मतलब इट शुड हैव ऑल यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन. दैट इज फॉर ऑल. यही सिंबल चलेगा. ये जो यहाँ पे कैन यू सी ओवर हियर ये क्या, देयर एग्जिस्ट वाई, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट जेड, ये नहीं होना चाहिए. लेट मी टेल यू, दिस शुडंट बी हियर. ओके ओके, so we have to change this. How to do it? Let me see how to do it. One sec. क्या दिया? Let me write down the question first. There exists x. No, there exists नहीं. For all x, there exists y. P of x implies R of x y. Let me write this thing. कैसे ब्रैकेट कैसे? अच्छा, ओवर हियर देयर इज ए ब्रैकेट. यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है. तो ये ब्रैकेट इज क्लोज्ड. implies q of x and there exists z r of x comma z. ऐसे कुछ है. ठीक है, अब इसको कैसे करें? अब फॉर ऑल एक्स है तो फॉर ऑल वाई होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, देयर एग्जिस्ट वाई दिया हुआ है. हाउ टू डू दिस, दैट वी हैव टू सी. Can you see this? This exists y. This is for this whole implication. This is for this whole implication. This exists y is for whole implication. अब ये मत बोलो यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x y है, यहाँ पे तो है नहीं सर. ये नहीं, इस implication के लिए ये जो पूरा ये है स्टेटमेंट, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट y इज़ वैलिड. ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसे यदि जब कोई स्टेटमेंट मिले तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है. विच इज़ इक्वल टू व्हाट विल डू, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई कर लो सीधा. हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते. पी ऑफ एक्स implies r of x y, r of x y implies अब q x and आप देखो यहाँ देयर एग्जिस्ट z. दिस इज ओनली फॉर दिस लिटरल. कैन यू सी आर ऑफ एक्स जेड? ये तो कोई इम्प्लीकेशन या कोई स्टेटमेंट पे नहीं, यहीं पे है सिर्फ. तो इस जेड की जगह मैं कोई एक स्कोलम कांस्टेंट डाल देंगे. व्हाट आई विल डू, आई विल बी पुटिंग ए स्कोलम कांस्टेंट ओवर हियर. स्कोलम कांस्टेंट
ओके, तो व्हाट आई विल डू, एंड आर ब्रैकेट में वी कैन राइट एक्स का एक्स ही रहेगा क्योंकि दिस इज फॉर ऑल एक्स, कॉमा एस के स्क्वायर कांस्टेंट एक्स। वन सेकेंड, अंडरस्टूड, बस हो गया, इट्स ओवर। होप आप लोगों को समझ में आएगा। दिस इज फॉर द होल स्टेटमेंट, तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, तो व्हाट आई विल डू, सिंपल फॉर ऑल वाई कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट, बस हो गया, खत्म। इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या है, इज ए जेड है, जेड इज फॉर ओनली दिस स्टेटमेंट, दिस थिंग, आर एक्सप्रेशन के लिए है, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कांस्टेंट डाल देंगे, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। दिस इज वन। The second thing, for all x, what we will do, wait for some time, I am doing it again, I have to do from the scratch, from here. For all x there exists y, इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, नॉट पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स वाई, दैट वी कैन डू ना। इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स ये भी एक ब्रैकेट है, आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो ब्रैकेट, क्यू ऑफ एक्स, हाँ ये ब्रैकेट है, इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट जेड, जेड को तो मैं हटा ही सकता हूँ, आर और यहाँ पे एक्स कॉमा एस के एक्स कॉलम कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स लगा दो, इतना तो क्लियर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये फुल होल स्टेटमेंट इम्प्लाइज दिस स्टेटमेंट, ओके, क्यू एक्स एंड दिस, तो हम क्या करेंगे, नॉट लगेगा, विच इज इक्वल टू नॉट एक्स ना, फॉर ऑल एक्स, नॉट फॉर ऑल वाई, नॉट पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स वाई, और ब्रैकेट में क्यू ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स कॉमा एस के ऑफ एक्स। ये तो स्क्वायर कांस्टेंट यहाँ पर लग गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, देखो इतना तक क्लियर है, इतना तक तो ओके, क्यू एफ एक्स एंड ये वाला तो ओके है। अभी हमें इधर की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस तरफ की। ओके, हाउ टू डू दिस, इधर का यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, विच इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स, ये इस नॉट सिंबल को, ये जो नॉट सिंबल है इसको मैं अंदर दूंगा, जब अंदर लेके जाऊंगा तो फिर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट जो सिंबल है वो क्या होगा, ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि ऑल रहेगा तो वो एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल वाई नॉट, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा, नॉट नॉट एंड नॉट आर ऑफ एक्स वाई, और क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स कॉमा एस के एक्स। होप आपको क्लियर हो गया, वही तो है शायद। अब फॉर ऑल वाई है, इसको बाहर कर लो, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एज यूजल, फिर पी एक्स एंड नॉट आर ऑफ एक्स वाई और डॉट 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 ऐसे करके चल रहा, यही तो हुआ है शायद। देखो पी एफ एक्स एंड नॉट आर ऑफ एक्स वाई, पी ऑफ एक्स एंड नॉट आर ऑफ एक्स वाई, और करके ये पूरी स्टेटमेंट। तो ये स्केलर फॉर्म में, होप आप लोगों को क्लियर हो गया। दिस इज द वे स्केलर फॉर्म इज डन। अब ये क्लॉज फॉर्म आ गया, क्लॉज फॉर्म। अब ये क्लॉज फॉर्म है क्या, दैट विल लुक इनटू। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, लेट मी राइट इट हियर। क्लॉज फॉर्म,
क्लॉज फॉर्म क्या है? इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला. Is a first order formula is in clause form. Is in clause form if it is of the following. If it is of the following form. क्या फॉर्म है? For all x1, for all x2 for all x3 c1 and c2 and cn. These are the clauses. और ये क्या है? ci is a clause made up of disjunction and ci is a clause made of disjunction of literals. Please wait for a second. I'm coming from the washroom. आई होप इतना तो क्लियर हो गया आपको. जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सी एन एफ, यू कैन से जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सी एन एफ. अब चलते क्लॉज नॉर्मल फॉर्म में. हाँ, कन्वर्ट दिस टू क्लॉज नॉर्मल, दिस वन. ओके, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? देयर इम्प्लाइज, यहाँ पे एक इम्प्लाइज है, यहाँ पे एक इम्प्लाइज है, ये सारे हैं. ये क्या किया? ये जो स्कोलम वाला क्वेश्चन है इसी को उन्होंने यहाँ पे डाल दिया. सिंपल, और कुछ नहीं किया. ओके, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा. लेट मी टेल यू, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व नहीं करोगे. ठीक है, आपको मैंने क्या बोला? A1 एंड A2 एंड A3 डॉट ऐसे चल रहे, एंड AI इक्वल टू B1 और B2 और B3 डॉट ऐसे ही चल रहे. ये तो पता है. एंड इट कैन बी दिस ऑल्सो, नॉट भी हो सकता है, लिटरल में कुछ भी हो सकता है. ओके, अब क्या है? ये तो मैं सॉल्व करूँगा नहीं. आई टोल्ड यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. अब मैं ये सब देखने लगूंगा. ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला. यहाँ पे क्या दिख रहा है? PT और QT एंड PW एंड दिस एंड दिस एंड दिस. ये सारे क्या है? डिसजंक्शन है. यहाँ पे डिसजंक्शन है और यहाँ कंजंक्शन है. इस जगह में कंजंक्शन है. तो दिस कैन बी द आंसर. तो क्या टिक दिस थिंग, टिक द आंसर. इन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए दैट यू डू नॉट हैव टू सॉल्व. आपको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे सेम दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और बीच में क्या है? एंड लगा हुआ है. कैन यू सी? दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द आंसर. एंड सी, दिस आर द आंसर्स. ओके, आप थर्ड में ऑप्शन में जा रहे हैं. ये देख लो, P ऑफ T Q ऑफ T, उसके बाद कह रहे सेमीकोलन, उसके बाद P ऑफ W कॉमा दिस. ये क्या कर रहे? वी डू नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग. ये क्या कर रहे? रिजोल्यूशन रेफ्यूटेशन मेथड यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारे तो होंगे नहीं क्लॉज नॉर्मल फॉर्म में. ठीक है, होप आपको क्लियर हो गए. ऐसे ही आएगा, कुछ दिमाग लगाने वाला और कुछ नहीं. Now fifth question. Consider the following pair of clauses with predicates QR. With predicates QR, function FG and variables XY and constants AB. ऐसे कुछ दिया हुआ. अच्छा, which of the following are unifiers for the pair of clauses? Pairs of clauses. Okay.
Okay, pairs of clauses. Which is the following are unifiers for the pairs of clauses. ये दो two pairs of clauses दिए हुए. Okay, so which are the unifiers they are asking. यहाँ क्या R f of a कॉमा g of b, ये तो दिया हुआ. और सेकंड में 3 है. ओके, नॉट आर, यहाँ पे x दिया हुआ और यहाँ पे नॉट y दिया, यहाँ पे y दिया हुआ. r है, ये x है. x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये नॉट को छोड़ दो, नॉट की ज़रूरत नहीं है, यूनिफाई करना है. तो ये x का वैल्यू क्या होना चाहिए? f है. तो x का वैल्यू f है, एक ले लो. और y का वैल्यू कितना होना चाहिए? GB. y का वैल्यू GB. तो y का वैल्यू GB. ये तो दो हो गया. x का वैल्यू f है, y का वैल्यू GB. इसका वैल्यू f है, y का वैल्यू GB. ओके, अब एक और है ये वाला, दिस पार्ट. नॉट आर f x कॉमा g क्वेश्चन ऑफ y, ऐसा कुछ दिया हुआ है. इसमें क्या करेंगे? नॉट आर है, इसका वैल्यू. अब f यहाँ पे क्या होगा? इस जगह में क्या होगा? ये दोनों की यूनिफाई करने के लिए, ये दोनों की यूनिफाई करने के लिए x का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू यदि a ले ले तो नॉट आर क्या हो जाएगा? f ऑफ a कॉमा और y का वैल्यू b ले लो तो g ऑफ b. कैन यू सी? दिस इज द वे टू सॉल्व. तो x का वैल्यू है, y का वैल्यू b, इसका वैल्यू है, y का वैल्यू b, और एक क्या हो गया? x का वैल्यू f है, y का वैल्यू GB. आप लोग को समझ आएगी क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग? x ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन. हमें दोनों को यूनिफाई करना पड़ेगा. तो मैंने x नॉट आर रहने दो, नॉट से कोई मतलब नहीं है. इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू f है, y का वैल्यू GB. अब यहाँ पे देखो नॉट आर, यहाँ पे f दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू यही होना चाहिए, f है तभी होगा. तो g ऑफ y का वैल्यू क्या होना चाहिए? b होना चाहिए, GB. और ये वाला तो एक एक्स्ट्रा दिया हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम. q ऑफ f है, इट विल बी. तो ये दीज आर द आंसर्स फॉर द पेयर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट जनरल यूनिफायर. दोनों ही प्रॉपर है, दोनों की ज़रूरत है. वी नीड बोथ द यूनिफायर्स. x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, x इक्वल टू f है, y इक्वल टू GB. अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व इट. द नेक्स्ट द क्वेश्चन, रिजोल्यूशन मेथड to derive all possible resolvent from KB1. This is very interesting.